Yes, good evening, everyone. Who is the CR? Yes, sir. What's your name, beta? Sir, Ayushi. Okay, I should just forward me the attendance sheet of your batch, okay? Okay, sir. The names of the students and all. Okay, sir. Okay. What is the total strength? ECRA plus BFSI combined. So 19 from BFSI and I think 18 from ECRA. Okay, 34. Sir, not 18, it's 15 actually. 15 from ECRA. Okay. Sir, please send your mail ID. Yeah. So we have seen the basics of the compiler that day, okay? And from today onwards, we will start with the first phase of the compiler, that is the lexical analysis phase. Okay, lexical analyzer or lexical analysis phase. Okay, this is also known as the scanner phase. In the very first class, we have seen that the work of this phase is to take your high level program and convert this into stream of tokens. Basically, tokens identify करता है ये. Okay, what are the identifiers, what are the keywords, what are the operators? It will identify all those things. So first, let's see what are the things apart from this lexical analyzer will do. First, obviously, it will give you a stream of tokens. This is the first thing that the lexical analyzer will do. Second, it scans your whole code character by character. Okay, character character, एक एक character पढ़ेगा पूरे program का. Okay, then it will eliminate all the comments. Suppose आपने अपने program में you have written comments. Okay, single line comments ऐसे लिखे हैं, multiple line comments लिखे हैं. Okay, all those comments will be eliminated. It will eliminate all the comments. जो भी आपके प्रोग्राम में यू राइट द कमेंट्स, वो कमेंट्स कभी भी कंपाइल क्यों नहीं होते, या फिर वो कभी भी रन टाइम में कोई व्हाई दे डोंट क्रिएट एनी इश्यूज ड्यूरिंग योर रन टाइम और कंपाइल टाइम, बिकॉज कंपाइलर इटसेल्फ, द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर इटसेल्फ, दिस लेक्सिकल एनालाइजर, इट रिमूव्स ऑल दोस कमेंट्स. हटा देता है सारे कमेंट्स प्रोग्राम से, कंपाइलर पढ़ता नहीं है आपके कमेंट्स. It eliminates all the comments and white spaces also. What is the meaning of white spaces? White spaces means, suppose I have written int a equals to 10 semicolon, and after that suppose I've given some space here and I've written int b equals to 10, something like that, or I've changed the line here and written something here, c out something. So just spaces ये दे रहे हो आप, you know that you can write whole C or C++ program in one line itself, right? Line change करने की जरूरत नहीं होती है. ये unwanted spaces दिए बिना भी the program will compile easily. So ये जो spaces हैं, these are known as white spaces. ओके, ये सारी स्पेसेस लेक्सिकल एनालाइजर रिमूव कर देता है स्टार्टिंग में. मतलब ये पूरे प्रोग्राम को एक ही लाइन में पढ़ेगा, सब कुछ एक लाइन में एडजस्ट हो जाएगा. डजंट मैटर यू हैव रिटन 500 लाइंस ऑफ कोड, okay, all the white spaces, all the extra lines, everything will be removed. The code will be cleaned in a sense. Got this? Then this lexical analyzer will generate a symbol table, something known as a symbol table. Okay, for example, you have used some identifiers in your program, int a equals to 10. तो int के बारे में तो पता है, equals to के बारे में भी पता है, but ये जो a है, this is known as a identity. नाम दिया हुआ है. सपोज आपने कोई क्लास लिखी है स्टूडेंट, सो क्लास तो पता है कि ये दिस इज अ कीवर्ड, बट द स्टूडेंट इज अ आइडेंटिफायर. दिस इज द नेम दैट यू हैव जस्ट डिफाइंड इन योर प्रोग्राम. तो जितनी भी नई इंफॉर्मेशन है, लेक्सिकल एनालाइजर इसको पढ़ते पढ़ते जो भी नई इंफॉर्मेशन आएगी उसको एक सिंबल टेबल में स्टोर करता जाएगा, ताकि जो बाकी फेजेस हैं which will come after the lexical analyzer, all those phases can take this information from the symbol table. एक ही बार symbol table generate होगी, उसमें lexical analyzer information डाल देगा. उसके बाद की जो आगे की phases, syntax analyzer, semantic analyzer, वो इस symbol table से information ले लेगी जैसे उसको जरूरत पड़ेगी. Okay, so it will generate a symbol table and store information about identifiers. Store info about
आइडेंटिफाइज, क्योंकि बाकी सारे कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, पंचुएटर्स, इन सब के बारे में लेक्सिकल एनालाइजर ऑलरेडी नोज। कैसे पता होता है वो भी देखेंगे हम लोग, बट उन सब के बारे में पहले से पता होता है। ये आइडेंटिफायर्स ही हैं विच द लेक्सिकल एनालाइजर डजंट नो। ओके, और अगर एरर्स के बारे में चलो बाद में बात करेंगे। Okay, so this is the overall work of a lexical analyzer. Now let's see example first. Okay, let's see example first. Suppose I write something like this: int say maximum, say x comma y. Okay, I declare some variables inside this, say global variable बना लेते हैं कुछ, bar, say just a second. Yeah. Say I create something, let's write some comment here that this will find maximum of x and y. X and y. Some multi-line comments I've written, and say x and y I declared like global something int x comma y, and okay, and here I return, say if x is greater than y, conditional operator I put it here, then you return x, else you return y. Okay, I close it. Suppose I have written a program like this. Okay, this is a high level program, either written in C, C++, Java, or any language. This program is sent to the lexical analyzer. Now what lexical analyzer will do on this program? First thing is it will remove all the white spaces. तो सारा int maximum x comma y, उसके बगल में int x comma y सब कुछ आ जाएगा. It will be arranged in a single line. First thing. Second thing, it will remove this comment also, right? Comment को भी हटा देगा. So this comment will also be removed. Then it will start scanning your program character by character. एक एक character को एक एक बार में पढ़ेगा. यहाँ से start करेगा. First it will see I, okay, then N, okay, and T. इसका पैटर्न मैच हो गया है. इसके लिए DFAs बने होते हैं बैकग्राउंड में. ओके, कैसे पैटर्न मैचिंग करता है? दिस लेक्सिकल एनालाइजर डज द पैटर्न मैचिंग विद द हेल्प ऑफ DFAs. बैकग्राउंड में DFAs बने होते हैं. फॉर एग्जांपल इंट के लिए एक DFA बना होगा कि इस तरह का एक कीवर्ड. सो जैसे इसका DFA से मैचिंग होगा, दिस विल बी आइडेंटिफाइड एज वन सिंगल टोकन. ये हो जाएगा एक टोकन. अच्छा, बिफोर दैट दिस रॉ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, जो रॉ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम है, इसमें ये सारी चीजें लेक्सिम्स होती हैं. एवरीथिंग इज अ लेक्सिम. ओके, जब लेक्सिकल एनालाइजर इसको स्कैन कर लेता है and it converts it into a token, it becomes a token. Okay, एनालाइजर को स्कैन करने से पहले these are known as lexems. I is a lexem, N is a lexem, T is a lexem, LEXEME, lexem. और जब लेक्सिकल एनालाइजर इसको स्कैन कर लेता है, it converts this into a token. Fine. So ये हमारा पहला टोकन हुआ int. After it will see M, okay, A, X, I, M, U, M, something जो कि मैच नहीं कर रहा है विद एनी ऑफ द DFAs. ठीक है, मतलब कीवर्ड के DFA से मैच नहीं कर रहा है. सो ये किससे मैच करेगा? ये आइडेंटिफायर के DFA से मैच करेगा. आइडेंटिफायर के DFA कैसे बना सकते हैं? व्हाट इज द रूल टू राइट अ आइडेंटिफायर? इट कैन स्टार्ट विद अ लेटर एंड देन एनी नंबर ऑफ लेटर और डिजिट्स कैन फॉलो. दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर आइडेंटिफायर. इज यस और नो? Basic rule of identifier is you have to start with a letter. You cannot start with a number, right? You cannot start with a digit. So letter से start करना है. A, B, C, B, and then you can have any number of letters or any number of digits. मैंने इसके ऊपर clean closure operator लगा रखा है. Just revise DFAs, NFAs and regular expression. Okay? ऐसे लिखेंगे इसका. किसी को इसमें दिक्कत? This is the OR symbol, right? For example, suppose I want that whether A 1 2 3 is this a valid identifier or not. तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे करेंगे? इट हैव टू स्टार्ट विद द लेटर. तो लेटर से स्टार्ट हो रहा है. देन यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ लेटर और डिजिट्स. सो 3 डिजिट्स अलाउड है, राइट? दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लेटर्स और डिजिट्स. सो ये जो मैक्सिमम है
दिस विल नॉट बी मैच्ड विद एनी अदर टोकन एक्सेप्ट आइडेंटिफायर. सो ये बन जाएगा दूसरा टोकन जो कि एक आइडेंटिफायर. देन दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, opening bracket, this opening bracket will be another identifier, another token that is a operator. फिर ये x आएगा, x will be another token that is a identifier. फिर ये comma आएगा, comma is a another token that is a operator. फिर ये y आएगा, y is a another token that is a identifier. फिर ये closing bracket आएगा, that is a another token that is a operator. ठीक है. फिर यहाँ पे int आएगा, int will be another token, x will be another token, comma will be another token, y will be another token, and semicolon will be another token that is a punctuator mark. 12. अब काउंट करो पूरे में, बताओ कितने टोकन है. काउंट एंड टेल मी, इस पूरे प्रोग्राम में अब कितने टोकन. Now suppose I write something like this. Suppose I write something like printf hello ampersand x. इसमें बताओ कितने टोकन्स हैं. Just remember one thing, everything inside a string or double inverted commas will be considered as one token only. क्यों? क्योंकि जैसे ही लेक्सिकल एनालाइजर को डबल ओपनिंग साइन मिलेगा पंचुएटर, वो ढूंढने लगेगा कि इसका क्लोजिंग कहां आ रहा है, और जब तक क्लोजिंग इसका नहीं आएगा, इट विल कंसिडर एवरीथिंग रिटन इनसाइड एज वन सिंगल टोकन. क्यों? क्योंकि इसी तरह स्ट्रिंग्स डिफाइंड है सी और सी प्लस प्लस में कि व्हाटएवर इज रिटन इनसाइड दिस डबल इन्वर्टेड कॉमास इज अ स्ट्रिंग. इसीलिए प्रिंटफ में जो भी लिखते हो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है. क्यों? क्योंकि कंपाइलर अंदर जा ही नहीं रहा है देखने कि आपने हेलो लिखा है कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है. राइट? Whenever you write in double inverted commas in printf, or the same thing with cout also, or in any other programming language also, it just prints as it is, क्योंकि उसके अंदर का पूरा चीज एज अ सिंगल टोकन ही काउंट होता है. तो बताओ इसमें कितने टोकन्स हैं. This printf will be one token क्योंकि एक कीवर्ड है. This opening brackets will be another token, right? फिर ये पूरा का पूरा क्लोजिंग ब्रैकेट से यहां तक will be one token. कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टोकन्स. 10 कैसे आ रहे हैं? 10 कैसे आ रहे हैं? Whatever is written inside this, ये पूरा एक ही टोकन है. This whole thing is one single token. This whole thing is one single token. ठीक है? सबके. Now tell me, if I write something like a plus plus, that's it. इसमें कितने टोकन्स हैं? Suppose semicolon भी यहाँ. How many tokens are there? 3 or 4? Here are 3 tokens. क्यों? Because lexical analyzer always do the longest pattern matching. Longest pattern matching. Longest pattern matching का मतलब ये होता है कि अगर lexical analyzer को एक प्लस दिख गया, a मिल गया, चलो ठीक है, ये तो एक टोकन है. उसको दूसरा प्लस मिला, तो अब इसको तुरंत टोकन नहीं बनाता है. इट विल सर्च क्या प्लस के बाद ऐसा कोई ऑपरेटर है जो कि एक वैलिड ऑपरेटर हो सकता है इन सी और सी प्लस प्लस, एंड प्लस प्लस इज अ वैलिड ऑपरेटर, यू नो, राइट? ऑपरेटर्स के लिए
डीएफए बना होगा जिसमें प्लस भी एक ऑपरेटर होगा, राइट, माइनस भी एक ऑपरेटर होगा, प्लस प्लस भी एक ऑपरेटर होगा। सो अगर उसको एक प्लस मिला तो वो तुरंत नहीं बोल देगा ये ऑपरेटर, वो उसके बगल वाला देखेगा। अगर बगल वाला भी प्लस है तो लॉन्गेस्ट मैचिंग विल बी सक्सेसफुल, एंड ये दोनों मिला के एक टोकन होगा, और सेमीकोलन विल बी द थर्ड टोकन। अगेन सपोज कुछ ऐसा लिखा होता ए प्लस माइनस बी सेमीकोलन, तो कितने टोकन होते हैं? डेफिनेटली दिस इज अ रॉन्ग सिंटैक्स, बट ये सिंटैक्स एनालाइजर देखेगा। लेक्सिकल एनालाइजर को कोई मतलब नहीं है ये है कि नहीं, लेक्सिकल एनालाइजर यहाँ पे दिक्कत नहीं देगा। ए देखेगा, ए एक टोकन, प्लस देखेगा, प्लस के बगल वाला क्या प्लस और माइनस एक वैलिड टोकन है? एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस, कैन यू राइट प्लस माइनस टुगेदर? क्या एक वैलिड ऑपरेटर है प्लस माइनस साथ में? नो, राइट। सो प्लस पे ही वो स्टॉप कर जाएगा। प्लस विल बी वन टोकन, माइनस विल बी अनदर टोकन, and B will be another token, semicolon will be another token. This is how pattern matching is done. Okay, because same thing is with keywords also. अगर printf लिखे हो तो खाली p देख के वो थोड़ी बोल देता है कि p is a single token, r is a single token, i is a single token, ऐसा तो नहीं करता है ना। वो देखता है, वो पूरा लंबा पैटर्न मैचिंग करेगा। इट विल सी, इट विल ट्राई टू गो एज फार एज पॉसिबल जब तक word ना मिल जाए। जब उसे पूरा printf का f तक मिल जाएगा देन इट विल स्टॉप एंड से कि पूरा का पूरा एक टोकन, राइट। ये भी तो लॉन्गेस्ट पैटर्न मैचिंग है। वो खाली पी पे स्टॉप करके थोड़ी बोल रहा है कि पी एक टोकन है, आर एक टोकन है। नो, पूरा प्रिंटफ एक टोकन है। गॉट दिस? दिस इज व्हाट लॉन्गेस्ट पैटर्न मैचिंग इज। ठीक है, सपोज आई राइट समथिंग लाइक दिस, ए प्लस 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 बी, हाउ मेनी टोकन्स आर देयर? थ्री और फोर, सिक्स, कैसे कैसे आ रहे हैं? पहला ए होगा, फिर प्लस दिखेगा, उसके बगल में फिर से प्लस दिखेगा, तो प्लस एक होगा, फिर प्लस दिखेगा, फिर प्लस दिखेगा, एक होगा, खाली प्लस एक होगा, खाली बी एक होगा। 1 2 3 4 5, 4 और 6 क्लियर है? अब लॉन्गेस्ट पैटर्न मैचिंग करेंगे ना, दो प्लस प्लस एक साथ मिल गए। ऑब्वियसली तीन प्लस एक साथ वैलिड ऑपरेटर नहीं है, एक साथ वैलिड ऑपरेटर नहीं है सी और सी प्लस प्लस में। यू हैव टू बी लैंग्वेज स्पेसिफिक। ओके, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सी ओनली, तो सी में दो प्लस तो वैलिड ऑपरेटर है, एक प्लस भी वैलिड ऑपरेटर है, बट तीन प्लस या चार प्लस वैलिड ऑपरेटर्स नहीं है, तो ऑब्वियसली दो पे रुकना पड़ेगा, फिर दो पे रुकना पड़ेगा, फिर एक पे रुकना पड़ेगा। So means this is something like this. अगर इस expression को if I try to evaluate, it is written something like this: a plus plus, फिर प्लस प्लस, फिर प्लस बी। क्या ये सही से इवेल्युएट हो रहा है, या फिर इसको कुछ इस तरह से डिवाइड होना चाहिए था, दैट a प्लस प्लस शुड बी एट वन प्लेस, देन प्लस शुड कम, एंड देन प्लस प्लस बी शुड बी एट वन प्लेस। ऐसे होना चाहिए था ना, लास्ट के दो प्लस प्लस एक साथ जाने चाहिए थे, तभी तो इवेल्युएट हो पाएगा सही। बनाते हो तो इस तरह इवेल्युएट हो रहा है। ओके, बट दिस इज नॉट द इशू विद लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेक्सिकल एनालाइजर विल कन्वर्ट दिस एज इट इज, वो इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा। कि जब ये आगे जाएगा सिंटैक्स एनालाइजर के पास, तब सिंटैक्स एनालाइजर विल ट्राई टू क्रिएट अ पार्स ट्री, और वो नहीं बना पाएगा बिकॉज ऑफ दिस एरर। तो यहाँ पे सिंटैक्स एरर आई है, राइट। लेक्सिकल एनालाइजर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका काम सिर्फ पैटर्न मैचिंग है, उसको और कोई मतलब नहीं है ये इवैल्यूएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। गॉट दिस? नाउ लेट्स सी थ्री टर्म्स फर्स्ट। इसमें से फर्स्ट टर्म इज लेक्सिम। वैसे हमने देख लिया, बट जस्ट फॉर द फॉर्मल डेफिनेशन, लेट्स सी व्हाट इज अ लेक्सिम, व्हाट इज अ टोकन, एंड व्हाट इज अ पैटर्न। तीनों में फर्क क्या है? सपोज in my high level language program I have written a code like e equals to m c and square, like this. I've written a high level language code like this. I have told you lexical analyzer will scan everything character by character, एक character फिर दूसरा character फिर तीसरा character, ऐसे ऐसे पढ़ेगा। Every character which the lexical analyzer is trying to scan is a lexeme। जब तक उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है वो लेक्सिम रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूं लेक्सिम्स क्या है और टोकन क्या है। ओके, सबसे पहले ई विल बी अ लेक्सिम इन द बिगनिंग। जब लेक्सिकल एनालाइजर ई को स्कैन कर देगा, इट विल कन्वर्ट दिस ई इनटू अ टोकन। कैसा टोकन? ई क्या है? ई इज अ आइडेंटिफायर। अच्छा, एक चीज और, वन मोर थिंग,
ऐसा होता है ना दैट सपोज इन योर प्रोग्राम इफ यू हैव रिटन समथिंग लाइक दिस int a equals to 10, ठीक है, एंड देन यू जब दोबारा a को यूज करना होता है यू डोंट रीडिफाइन a, राइट, फिर से int लगाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है a क्या है, यू कैन डायरेक्टली यूज a समथिंग लाइक दिस, राइट, बार बार a को डिक्लेयर या डिफाइन नहीं करते हो, बट इसकी जगह अगर a आप पहली बार में डिफाइन ना करो, यू डोंट डिफाइन a इन द बिगनिंग इटसेल्फ, सीधे लिखो a equals to 10 तो आएगा ना डेटा टाइप नॉट डिफाइंड एरर, an error comes, right, that this data type a is not defined, a is not declared anywhere. ये एरर कैसे आती है? What happens is जब लेक्सिकल एनालाइजर फर्स्ट टाइम किसी लेक्सिम को आइडेंटिफाई करता है, सपोज ई को कर रहा है, देखो लेक्सिकल एनालाइजर को टोकन्स की कैटेगरी में, इफ आई टॉक अबाउट टोकन्स, तो उसको सारे टोकन्स के बारे में पहले से पता है क्योंकि उनका डीएफए बना हुआ है, कीवर्ड्स क्या है पता है, लिटरल्स क्या है, डेटा टाइप्स मतलब इंट कैर फ्लोट सारे पता है, ऑपरेटर्स क्या है सारे पता है, पंक्चुएटर्स क्या है सारे पता है, जो नहीं पता है वो है आइडेंटिफायर्स, क्योंकि वो आप अपने प्रोग्राम में तुरंत तुरंत डिक्लेयर करते हो जो आइडेंटिफायर्स हैं. सो व्हाट लेक्सिकल एनालाइजर विल डू, इट विल क्रिएट अ सिंबल टेबल. इस सिंबल टेबल में वो उन आइडेंटिफायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. सपोज फर्स्ट टाइम इट आइडेंटिफाइज ई, ई इज अ लेक्सिम, तो वो क्या करेगा, तुरंत नहीं इसको कन्वर्ट कर देगा, वो सबसे पहले जाके सिंबल टेबल में देखेगा क्या सिंबल टेबल में ई कहीं प्रेजेंट है बिगनिंग में, क्या कहीं ई प्रेजेंट है सिंबल टेबल में, नहीं प्रेजेंट है ना, पहली बार देख रहा है, सपोज यहाँ इंट लिखा होगा ऑब्वियसली, है ना, इंट या फ्लोट करके कुछ लिखा होगा, सबसे फर्स्ट टाइम ई को देख रहा है सिंबल टेबल, तो वो क्या करेगा सिंबल टेबल में जाएगा, पहली पोजीशन पे ई को रख देगा, दैट ई इज अ आइडेंटिफायर, एंड नाउ इट विल कन्वर्ट दिस ई इनटू अ टोकन, कि ई जो है वो एक आइडेंटिफायर है जो कि पहली पोजीशन पे रखा गया है, दिस इज हाउ ई विल बी कन्वर्टेड, दिस इज हाउ लेक्सिम विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टोकन. रिमेंबर इन द फर्स्ट एग्जांपल जब देखा था a इक्वल्स टू b प्लस c समथिंग ऐसा कुछ लिखा था, इसको कन्वर्ट करके फॉर जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन आई हैव टोल्ड यू दिस इज रिटन समथिंग लाइक दिस, id इक्वल्स टू id प्लस id, है ना, तो वो एग्जैक्टली वो ऐसा कन्वर्ट होता है कि ये a कहाँ रखा है, a पहली पोजीशन पे रखा है, सो id 1, कि ये जो आइडेंटिफायर है वो पहली पोजीशन पे रखा है, b सपोज सेकंड पोजीशन पे रखा है, id कॉमा 2, b जो है वो सेकंड पोजीशन पे रखा है. इस एग्जांपल को देखो, इट विल बी क्लियर. ओके, देन लेक्सिकल एनालाइजर विल मूव फॉरवर्ड, लेक्सिकल एनालाइजर विल कम हियर, इसे दिखेगा इक्वल्स टू साइन, ओके, लेक्सिम है इक्वल्स टू, इसको ये कन्वर्ट कर देगा ऑपरेटर में, दिस इज द ऑपरेटर दैट इज इक्वल्स. क्या इसको सिंबल टेबल में झांकने की जरूरत है या सिंबल टेबल में इक्वल्स टू पुट करने की जरूरत है? लेक्सिकल एनालाइजर नीड्स टू पुट दिस इक्वल्स टू इन द सिंबल टेबल. हाँ या ना, डज लेक्सिकल एनालाइजर नीड्स टू पुट दिस इनटू सिंबल टेबल, इक्वल टू पुट करना पड़ेगा उसे, कि उसे पहले से पता है कि इक्वल टू एक ऑपरेटर है, इसे नहीं करना पड़ेगा, राइट, इक्वल्स टू इज ऑपरेटर, ये उसे पहले से पता है, उसको सिंबल टेबल में नहीं लिखेगा, ओनली द आइडेंटिफायर्स लेक्सिकल एनालाइजर विल राइट इन द सिंबल टेबल, बाकी सब पहले से स्टोर होता है. ओके, देन इट विल मूव फॉरवर्ड, एम मिल, क्या एम सिंबल टेबल में पहले से प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, तो उसको सेकंड पोजीशन पे जाके वो एम को रख देगा, बोलेगा दिस इज आल्सो अ आइडेंटिफायर, सो एम विल बी कन्वर्टेड समथिंग लाइक दिस, दैट दिस इज अ आइडेंटिफायर व्हिच इज केप्ट एट द सेकंड पोजीशन. देन इट विल सी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए सिंबल टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को पहले से पता है लेक्सिकल एनालाइजर को, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट दैट दिस इज अ ऑपरेटर व्हिच इज मल्टीप्लिकेशन. देन इट विल सी सी, सी देखेगा, सी सिंबल टेबल में पहले से प्रेजेंट नहीं है, मतलब बेसिकली जैसे सी आया वो सिंबल टेबल में झाकेगा, क्या सी पहले से प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट होता तो सी को दोबारा नहीं लिखते, वहीं से उठा लेते, बट प्रेजेंट नहीं था, सो यू विल सी इन द थर्ड पोजीशन दैट दिस इज आल्सो अ आइडेंटिफायर, so c will be converted something like this, that identifier comma 3, that this is the identifier that is put in the third position. suppose इसके बाद यहाँ पे भी मैं c लिखता 2 की जगह, तो ऑब्वियसली स्टार स्टार तो एक आइडेंटिफायर बन जाएगा, वो चला गया. सपोज जब इसको c मिलता दोबारा, when the lexical analyzer encounters c again, तो फिर से c आएगा, अब वो सिंबल टेबल में जाएगा, सिंबल टेबल में देखेगा सी पहले से ही रखा हुआ है, तो उसको डायरेक्टली वही कन्वर्जन करेगा, दैट दिस इज पुट एट id 3 ओनली, दोबारा नहीं यहाँ पे 4 जाके सी को फिर से डालेगा, नहीं, उसी चीज को उठा लेगा सीधा. So overall, the thing is that lexical analyzer will convert this whole lexems, e lexem है equals to lexem है, m lexem है, e multiplication is a lexem, c is a lexem, equals to is a lexem, equals to is a lexem, c is a 2 is a lexem, semicolon is a lexem, ये सारे lexem को वो convert कर देगा कुछ इस तरह, that this is the identifier that is placed as the first position,
then comes the operator that is equals to, then again comes the identifier that is put at the second location. अब identifier का देखो नाम से मतलब नहीं है, आइडेंटिफायर है, काम खत्म। इसीलिए मैंने जो द एग्जांपल दैट वी हैव सीन वहां पे a इक्वल्स टू b प्लस c को हमने id इक्वल्स टू id प्लस id के फॉर्म में कन्वर्ट किया, बिकॉज आइडेंटिफायर इज आइडेंटिफायर, डजंट मैटर वो m है कि c, right? Then comes the operator that is multiplication, okay? Then comes the identifier that is put at the third location and so on and so forth. This is how, और this is what is known as stream of tokens, इसे ही बोलते हैं stream of tokens, जो कि जाता है syntax analyzer के पास। समझ गए सब लोग? Any doubts? Any doubts? ठीक है। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स लेक्सेम हो गया, टोकन्स हो गया। पैटर्न्स आर बेसिकली यूज्ड टू डिफाइन रेगुलर एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर आइडेंटिफायर के लिए मुझे रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है, okay, so the pattern will be letters followed by digit. This is the pattern or the regular expression for the identifier. So basically patterns are something that we use to create regular expressions, okay? बाकी इन regular expression का और कैसे यूज होता है अभी देखेंगे। So till now we have seen how lexical analyzer scans your data कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वाइट स्पेसेस रिमूव करता है, कमेंट्स रिमूव करता है और फिर सारे टोकन्स काउंट करता है, ठीक है? अगर कोई नया आइडेंटिफायर मिला विच इज नॉट प्रेजेंट इन द सिंबल टेबल तो उसको सिंबल टेबल में लिख देगा, और दोबारा वो रिपीट होगा तो उसको सिंबल टेबल से उठा लेगा, फिर से नहीं लिखने जाएगा। ओके, दिस इज हाउ लेक्सिकल एनालाइजर डज इट्स वर्क। अब इसमें एक टर्म होता है कि टेक्निकली ये कैसे कर रहा है, सो उसके लिए एक कंसेप्ट होता है इन बफरिंग का। व्हाट इज दिस कंसेप्ट इज एक्चुअली, सपोज आई हैव अ प्रोग्राम लाइक दिस, इंट मेन, ओके, ये ऐसे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, कर्ली ब्रेसेस ओवर। सपोज दिस इज माय हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। यू नो कि जब तक प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल नहीं कर रहे हैं, ओके, तब तक वो हार्ड डिस्क में है, दैट इज सेव्ड इन योर हार्ड डिस्क .c या .cpp एक्सटेंशन के साथ। व्हेन यू कंपाइल दैट प्रोग्राम तब वो उठ के आता है आपकी मेन मेमोरी या रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उठा के लाके रखता है इन योर मेन मेमोरी और रैम। सपोज ये हार्ड डिस्क में स्टोर है लाइक दिस, ओके, दिस इज योर INT, suppose there is a space, you have MAIN opening brackets and closing brackets. So now how this lexical analyzer scans these lexemes, ये सारे lexeme है ना एक एक बॉक्स में जो लिखा हुआ है, yes or no? All these are lexemes, I is a lexeme, N is a lexeme, T is a lexeme, M is a lexeme, A सारे lexeme है। lexical analyzer के पास दो पॉइंटर होते हैं, okay? First one is lexical begin pointer, and second one is your forward pointer. Initially this lexical begin pointer and forward pointer both will be at the first position. forward pointer भी यहाँ रखा रहेगा, lexical begin pointer भी यहाँ रखा रहेगा। उसके बाद forward pointer move करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से forward pointer करेगा यहाँ, उसको दिखेगा I, N दिखेगा, उसको यहाँ से the forward pointer will again move, it will come to T, उसके बाद it will again move and it will see a blank space। जैसे ही कोई blank space आएगा या फिर कोई और कीवर्ड या किसी और आइडेंटिफायर या कोई और ऑपरेटर जैसे आइडेंटिफाई होगा, जो भी आपका लेक्सिकल बिगिन पॉइंटर था वहां से लेके फॉरवर्ड पॉइंटर -1 तक एक टोकन होगा पूरा का पूरा। उसके बाद फॉरवर्ड पॉइंटर विल बी केप्ट एट फॉरवर्ड पॉइंटर +1 लोकेशन और लेक्सिकल बिगिन पॉइंटर भी यहां से मूव करके यहां जाएगा टू द न्यू टोकन, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर से फॉरवर्ड पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा, ए दिखेगा, आई दिखेगा, एन दिखेगा, और जैसे ही उसे ओपनिंग ब्रैकेट्स दिखेगा फॉरवर्ड पॉइंटर -1 ये पूरा विल बी आइडेंटिफाइड एज 1 टोकन। फिर लेक्सिकल बिगिन पॉइंटर मूव करके यहां जाएगा, फॉरवर्ड पॉइंटर जैसे ही आगे मूव करेगा इसको तो ये पार्ट विल बी 1 टोकन और इसी तरह ये पार्ट विल बी 1 टोकन। दिस इज हाउ पैटर्न मैचिंग इज डन, ओके? कैसे हार्ड डिस्क से पैटर्न मैचिंग हो रही है, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। व्हेन यू आर ट्राइंग टू रीड दिस आई और फॉरवर्ड पॉइंटर मूव करके जैसे ही एन रीड कर रहे हो उतने ही सिस्टम कॉल्स लग रहे हैं हमें, उतने ही सिस्टम कॉल्स लग रहे हैं टू रीड ईच लेक्सिम फ्रॉम ये हार्ड डिस्क में है, दिस इज इन आवर हार्ड डिस्क। टू रीड ईच, ये कंप्यूटर की मेमोरी है पूरी की पूरी, 1 डायमेंशनल मेमोरी, ओके? कंप्यूटर में 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल मेमोरी नहीं होती, 1 डायमेंशनल मेमोरी ही होती है। रिमेंबर मैट्रिक्स में भी पढ़ा था रो मेजर ऑर्डर्स एंड कॉलम मेजर ऑर्डर्स, बिकॉज कंप्यूटर की मेमोरी इज 1 डायमेंशनल ओनली,
रियलिटी में सब कुछ लाइन में लिखा हुआ है, ये जो कंप्यूटर का पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ है ऐसे एक लाइन में लिखा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जितनी लेक्सिम आप पढ़ रहे हो उतने सिस्टम कॉल्स लग रही हैं। आई को पढ़ने के लिए एक सिस्टम कॉल लग रहा है हार्ड डिस्क से, एन को पढ़ने के लिए एक सिस्टम कॉल लग रहा है, टी को पढ़ने के लिए एक सिस्टम कॉल लग रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, यस और नो? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी डू इज वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ, ये समझ में आया सबको कि नहीं कि प्रॉब्लम क्या है? बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन अ वन डायमेंशनल मेमोरी, और जितनी लेक्सिम पढ़ रहे हो, आई पढ़ रहे हो, एन पढ़ रहे हो, टी पढ़ रहे हो, सबको पढ़ने में सिस्टम कॉल्स लग रहे हैं। प्रॉब्लम समझ आ गई? राइट? इसका सॉल्यूशन होता है इनपुट बफरिंग। सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इनपुट बफरिंग। व्हाट वी विल डू, बफर क्या होता है? बफर इज अ पार्ट ऑफ स्पेस दैट इज रिजर्व्ड इन योर रैम मेमोरी। सीधे सीधे रैम में हम लोग एक बफर क्रिएट करते हैं। सपोज वी क्रिएटेड अ बफर ऑफ 100 कैरेक्टर्स, 100 कैरेक्टर्स एक बफर क्रिएट कर दिया रैम में। अब क्या होगा, पूरे प्रोग्राम को हम लोग हार्ड डिस्क में सेव नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू सेव द फर्स्ट 100 कैरेक्टर्स ऑफ द प्रोग्राम एट लीस्ट इन द बफर इटसेल्फ। डायरेक्टली बफर में सेव करेंगे, मेन और ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। इसमें दो टाइप है। फर्स्ट इज योर सिंगल बफर, कि एक ही बफर बनाएंगे इस तरह का। सपोज 100 कैरेक्टर्स का एक मेमोरी बफर बना दिया, बाकी प्रोसेस सेम है। लेक्सिकल बिगिन पॉइंटर विल बी हियर, फॉरवर्ड पॉइंटर विल बी हियर। फॉरवर्ड पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे ही व्हाइट स्पेस आ जाएगा या कोई और टोकन आ जाएगा इट विल स्टॉप, और फॉरवर्ड पॉइंटर -1 तक एक टोकन हो जाएगा, ये दूसरा टोकन हो जाएगा, तीसरा टोकन हो जाएगा, ये चौथा टोकन हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली द प्रॉब्लम इज विजिबल, इसका साइज फिक्स है 100 कैरेक्टर्स ओनली। तो अगर उसके बाद का जो प्रोग्राम लिखना है उसके लिए आपको इस पूरे को ओवरराइट करना पड़ेगा, राइट? इसके लिए दूसरा एक सॉल्यूशन होता है दैट इज टू बफर। टू बफर, अच्छा कैसे पता चलेगा कि बफर का एंड आ गया? हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि बफर का एंड आ गया? किसी फाइल का एंड आता है कैसे पता चलता है? देयर विल बी एंड ऑफ फाइल मार्क। ओके, नल नहीं होगा, एंड ऑफ फाइल मार्क होगा। फाइल हैंडलिंग में पढ़ा है ना, सी में एंड ऑफ फाइल ईओएफ मार्क होता है। कैसे लगाते हैं? कंट्रोल जेड के साथ लगाते हैं। इफ यू पुट कंट्रोल जेड इन योर विंडोज सिस्टम्स इट विल बी एंड ऑफ फाइल मार्क। जैसे एंड ऑफ फाइल मार्क आ जाएगा मींस द बफर इज फुल। देन कम्स द टू बफर सॉल्यूशन। टू बफर सॉल्यूशन क्या? दो बफर बनाएंगे, एक नहीं बनाएंगे, दो बफर बनाएंगे। 100 के दो बफर बना दिए, 100 का बफर इधर, 100 का बफर इधर, ठीक है? दोनों में ही एंड ऑफ फाइल मार्क लगा दिया लास्ट में। थोड़ा प्रोग्राम यहाँ स्टोर किया, थोड़ा प्रोग्राम यहाँ स्टोर किया, ठीक है? सो दीज आर बेसिकली टेम्पररी सॉल्यूशंस। पूरा का पूरा हार्ड डिस्क से रीड करने में टाइम ज्यादा लग रहा था, तो रैम में जगह अलॉट कर दी। ओवरऑल समरी ये है, व्हाट वी आर रीडिंग इज कि पूरा पूरा हार्ड डिस्क से रीड करने में इट वाज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। दैट इज व्हाई वी हैव रिजर्व्ड सम स्पेस इन द मेमोरी इटसेल्फ। रैम में सीधा सीधा स्पेस रिजर्व कर दी। अब बोलो कि दो टू बफर बनाए तो थ्री बफर क्यों नहीं बना लेते? जितने बफर बना रहे हो उतनी रिजर्व कर रहे हो अपने प्रोग्राम के लिए। पहली चीज तो अगर प्रोग्राम नहीं है तो वो मेमोरी ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो वो वेस्ट होगी। गेटिंग? जस्ट अ मिनट, या फाइन। अगर सपोज आपने आप यू से कि ओके दो बफर तक ठीक है, मैं तीन बफर कर दूं। सपोज प्रोग्राम उतना बड़ा नहीं है, 1000 का ये है पहला बफर, 1000 का दूसरा, 1000 का तीसरा बफर, तो ये मेमोरी तो फिक्स हो गई ना। अगर प्रोग्राम आपका सपोज पहले दो बफर में खत्म हो गया तो थर्ड बफर फिक्स रहेगा, यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन लोड नहीं कर पाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से, राइट? इसीलिए टू बफर तक ही जनरली लोग प्रेफर करते हैं, उससे ज्यादा रिजर्व नहीं करते हैं। गॉट दिस? एनी डाउट्स? सी ट्राई टू फिनिश and learn the concepts of compiler design in the class itself, है ना? ऐसा लास्ट के लिए मत छोड़ना, बहुत बड़ा सिलेबस है इसका। इफ यू गाइस विल थिंक कि एग्जाम के एक दिन पहले इसको मैं पढ़ लूंगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सब्जेक्ट सो हाईली इज वेरी कंटिन्यूस इन योर स्टडीज, खासकर जब पार्सल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो जितने भी कोई डाउट्स है जस्ट ट्राई टू क्लियर देम इन द क्लास इटसेल्फ। डोंट लीव एनीथिंग कि मिड सेम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, एंड सेम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, पास नहीं हो पाओगे। ओके, सो वी आर गोइंग स्लो। कोई इश्यूज है तो तुरंत उसी वक्त पूछ लो, है ना? वैसे बहुत एक बार देखो इसमें कंसेप्ट समझ में आ गया। इसमें पता है मार्किंग विल बी बाइनरी। जो तुम लोग सीनियर्स ने जो ये बैचेस पढ़े हैं उनमें हाईएस्ट मार्क्स आर अराउंड 90 समथिंग,
out of 100. Okay, so either you will or you will score less than 30. इसमें कुछ भी बीच में नहीं है. There is no average marking in compiler design. अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ गए यू विल स्कोर वेरी गुड. कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो फेल हो जाओगे. ठीक है, इसमें कोई एवरेज मार्किंग नहीं है क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स हैं. देयर इज नो थ्योरी और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ओके, सो अभी तक किसी को डाउट इन एनी टॉपिक? बेसिकली द समरी इज वी हैव सीन रिगार्डिंग लेक्सिकल एनालाइजर. लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, कैसे टोकन आइडेंटिफाई करता है, और एक कंसेप्ट हमने पढ़ा इनपुट बफरिंग का, कि डायरेक्टली हार्ड डिस्क से रीड करने में टाइम ज्यादा लग रहा था तो मेमोरी में बफर, बफर मतलब स्पेस रिजर्व, मेमोरी में रैम में सीधा स्पेस रिजर्व कर दी. एनी डाउट्स? सो यू हैव सीन दैट अगर कोई नया आइडेंटिफायर होता है, ओके, और सम न्यू नेम्स और सम न्यू आइडेंटिफायर्स इन द लेक्सिकल एनालाइजर, सो क्या करता है, सबसे पहले सिंबल टेबल में देखता है. इट ट्राइज टू सी इन द सिंबल टेबल, है ना. सी दिस डायग्राम फर्स्ट. सपोज दिस इज योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड, दिस इज योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड. तो ये पूरा का पूरा कोड लेक्सिम होगा, हर कैरेक्टर इसमें लेक्सिम होगा, राइट. These lexims are sent to your lexical analyzer. This lexical analyzer will convert this into tokens. Tokens में convert करके इसको ये syntax analyzer के पास भेजेगा, right? फिर syntax analyzer बोलेगा मुझे बाकी tokens भेजो, request for tokens. ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहेगा. This loop will keep on continuing. Suppose कोई नया identifier मिला, if it encounters some new identifier, so it will send this to the symbol table. सबसे पहले जाके सिंबल टेबल में देखेगा क्या वो पहले से प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं प्रेजेंट है तो जाके वहां पे लिख देगा. दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. और ऑब्वियसली सिंटैक्स एनालाइजर भी सिंबल टेबल से बात कर रहा होगा. गॉट दिस? तो ये बात हो गई रिगार्डिंग आइडेंटिफायर्स, कि अगर कोई नया आइडेंटिफायर मिला तो क्या किया, जाके सिंबल टेबल में देखा, पहले से प्रेजेंट था तो वहीं से उठा लिया, नहीं प्रेजेंट था सो वी जस्ट वेंट एंड रोट अबाउट दैट. नाउ व्हेन आई एम सेइंग यू दैट इसको पहले से पता है कि ये इंट है, इसको पहले से पता है ये सपोज क्लास नाम का कीवर्ड है, ये कैसे पता है लेक्सिकल एनालाइजर को? ओके, हाउ दिस थिंग इज स्टोर्ड इन द लेक्सिकल एनालाइजर. लेट्स सी दैट थिंग. So now what we are going to see is how the lexical analyzer basically recognizes the tokens. वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि ये टोकन्स है? इसका एक लाइन में आंसर है, इट मेक्स द ट्रांजिशन डायग्राम्स. डीएफए और एनएफए बनाता है ट्रांजिशन डायग्राम्स. इट क्रिएट्स ट्रांजिशन डायग्राम्स. फॉर एग्जांपल इफ आई से यू दैट आई वांट टू, फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफायर्स के लिए वो कैसे बनाता है. आइडेंटिफायर्स के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? आइडेंटिफायर्स कैन बी लेटर्स or letters followed by any number of digits. This is the regular expression for identifiers. लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी लेटर और डिजिट के कॉम्बिनेशन आ जाए, राइट? yes or no? So what will be the DFA for the lexical analyzer, or what will be the NFA for lexical analyzer? Transition diagram मतलब DFA NFA कुछ भी बना सकते हो. Suppose I make something like this, that I will start with a key state. मुझे लेटर मिलना चाहिए सबसे पहले. When I will get the letter, I will go to another state, that is Q1 state. और यहाँ पे चाहे मुझे कितने भी नंबर ऑफ लेटर्स या डिजिट्स मिल जाए. दिस इज हाउ द एनएफए विल लुक लाइक, कि लेटर से ये स्टार्ट होना चाहिए, डिजिट से नहीं हो सकता. अब सपोज कोई ऐसे लिखे ए बी, सो वेदर दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. ए मिला मतलब लेटर मिला, आई विल गो टू Q1 स्टेट. यहाँ पे बी मिला, फिर से लेटर मिला, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेड. सपोज आई गेट 1 ए बी, क्या 1 से स्टार्ट हो सकता है? कैन आई गो टू Q1 स्टेट? नहीं हो सकता, राइट? This will not be a valid identifier. Suppose I get A, B, C 1 2 3. So A मिला, लेटर से स्टार्ट हुआ, तुरंत आ गया Q1 स्टेट में. फिर B मिला, फिर C मिला, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला. फाइनल स्टेट accepted. So this is a valid identifier. This is how the DFA for identifier will be made. इसी DFA के हिसाब से लेक्सिकल एनालाइजर पैटर्न मैचिंग करता है. जैसे ही उसे मिलता है, सपोज इंट के बाद हेलो लिखा हुआ है, इंट हेलो इक्वल्स टू 2, तो हेलो में सबसे पहले एच मिलेगा, उसे एच से वो आ जाएगा इस स्टेट में. फिर उसे ई मिलेगा, वो इसी स्टेट में रहेगा. फिर एल मिलेगा, इसी स्टेट में रहेगा. फिर एल मिलेगा, इसी स्टेट में रहेगा. फिर ओ मिलेगा, इसी स्टेट में रहेगा. फिर जैसे इक्वल्स टू मिलेगा मतलब काम खत्म, फाइनल यही स्टेट होगी, एक्सेप्ट कर लेगा. सो हेलो विल बी 1 टोकन और 1 आइडेंटिफायर. दिस इज हाउ लेक्सिकल एनालाइजर विल आइडेंटिफाई द identifiers. Now let's see how it identifies say ऑपरेटर्स. ऑपरेटर्स की बात करते हैं. ऑपरेटर्स कैसे आइडेंटिफाई करेगा?
जनरली अगर ऑपरेटर्स की बात करूं, सो यू हैव ऑपरेटर्स लाइक ग्रेटर देन टू, लेस देन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, प्लस प्लस वगैरह भी हो सकता है, बट सपोज इतने हैं मेरे पास ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स की सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट। अब इसके लिए कैसे बनेगा ट्रांजिशन डायग्राम? आई विल स्टार्ट विद द, सबसे पहले देखते हैं ग्रेटर देन वाले को, ग्रेटर देन टू देखते हैं सबसे पहले। आई विल स्टार्ट विद Q0 स्टेट। सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए ग्रेटर देन, मुझे ग्रेटर देन मिलेगा, आई विल गो टू Q1 स्टेट। क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर लूं तुरंत? क्या मैं इसे फाइनल स्टेट बना दूं? अगर मैं इसे फाइनल स्टेट बना दूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू एक आइडेंटिफायर कैसे होगा? जैसे ग्रेटर देन मिलेगा इसे यहीं पे काट देगा ना, इट हियर इटसेल्फ, एक आइडेंटिफायर इसे बोलेगा, एक इसे बोलेगा। आई कैन नॉट मेक Q1 एज अ फाइनल स्टेट। गेटिंग द पॉइंट? If you want to accept greater than equals to, I cannot make Q1 as the final state, because whenever you will see a greater than, Q1 को final state अगर मैं ऐसे बना दूं तो greater than ही accept हो जाएगा ना as a token, equals to नहीं। Yes or no? Getting the point or not? So Q1 cannot be the final state. I have to move one step ahead. Equals to, जब greater than equals to दोनों दिख जाएंगे तो I will comes to a new state, Q2 state, जिसको मैं final state बनाऊंगा, और यहाँ पे मैं टोकन लिख दूंगा, this is a relational operator greater than equals to, ऐसे करके कुछ टोकन में बना दूंगा। गॉट दिस? बट खाली ग्रेटर देन भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, खाली ग्रेटर देन भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए, राइट? मतलब खाली अगर ग्रेटर देन है, सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सपोज समथिंग इज रिटन लाइक दिस, ए इज ग्रेटर देन, तो खाली ग्रेटर देन भी तो एक्सेप्ट होना चाहिए। इसके लिए क्या करें? इफ आई एम ऑन Q1 स्टेट, आई सी एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम इक्वल्स टू, I see any other thing or any other identifier you can say, I will come to another state Q3 और इसको मैं final state बना दूंगा, और यहाँ मैं लिख दूंगा ऐसा इसीलिए हुआ है because I have seen a relational operator that is greater than. Now you see, suppose I have a greater than equals to, तो greater than मिला, I will come to this state Q1, फिर मुझे equals to मिला, I will come to this state Q2 accepted। क्या प्रिंट हो जाएगा या क्या आगे चला जाएगा? That I have seen a relational operator that is greater than or equal to. Now suppose I see something like A is greater than B, तो greater than मिला, greater than में I will move to this state Q1 state, greater than के बाद मुझे B मिला, तो I will not move to Q2 state, I will move to Q3 state, और तुरंत ये accept हो जाएगा that I have seen a relational operator that is greater than. This is how the transition diagram will be made for greater than and greater than or equal to. किसी को दिक्कत इसमें? सिंपल NFA बनाया हुआ है इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है? एक बार NFA DFA रेगुलर एक्सप्रेशन रिवाइज कर लेना if you have forgotten. ये हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू की बात। नाउ सपोज आई वांट लेस देन और इक्वल्स टू, वो कैसे होगा? Q1 से आई लेस देन फर्स्ट, अगर लेस देन मिलेगा तो आई विल गो टू अनदर स्टेट Q4 स्टेट, फिर अगर मुझे यहाँ इक्वल्स टू मिल जाएगा आई विल गो टू अनदर स्टेट Q5 और दैट विल बी द फाइनल स्टेट। यहाँ पे द टोकन विल बी दैट आई हैव सीन अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन दिख गया लेकिन इक्वल्स टू नहीं दिखा, एनी अदर थिंग इफ आई सी, कुछ भी और दिखेगा, आई विल से दैट आई हैव रीच्ड अनदर स्टेट Q6 जो कि मेरी फाइनल स्टेट होगी, और यहाँ पे आई विल से दैट आई हैव सीन अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज लेस देन। अब इसका देखो फर्क ये भी है, सपोज आई सी समथिंग लाइक दिस, A इज लेस देन नॉट B, टेक्निकली ये सिंटैक्स गलत है, दिस इज अ रॉन्ग, बट लेक्सिकल एनालाइजर को कोई मतलब नहीं है। वो A दिखेगा, बोलेगा A एक टोकन है दैट इज आइडेंटिफायर, फिर वो लेस देन दिखेगा, लेस देन दिखेगा तो यहां से इस स्टेट में आएगा, फिर वो देखेगा नॉट इक्वल्स, क्या नॉट इक्वल्स यहां नहीं आएगा Q5 स्टेट में, वो तुरंत Q5 स्टेट में आएगा, Q6 स्टेट में आएगा यहाँ पे, और कहेगा कि मैं आई हैव सीन अ रिलेशनल ऑपरेटर दैट इज लेस देन। ये इसको एक टोकन बना देगा, नॉट को एक टोकन बना देगा, बी को एक टोकन बना देगा। दिस इज हाउ लेक्सिकल एनालाइजर भी वर्क। इसी तरह यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू का भी आएगा, इसी तरह यहाँ पे इक्वल्स टू का भी आएगा। इन द सेम वे दिस होल ट्रांजिशन डायग्राम विल बी मेड फॉर द ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह कीवर्ड्स का बनेगा, सपोज आई टॉक अबाउट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के लिए कैसे बना होगा? लेक्सिकल एनालाइजर को कैसे पता चलता है कि इंट इज अ कीवर्ड, इसको मुझे कीवर्ड बोलना है, इसके लिए डीएफएस बने हुए हैं, पहले से एनएफएस बने हुए हैं। कैसे? सपोज आई एम ऑन Q0 स्टेट, I see a I go to another state Q1, I see N, I go to another state Q2, I see T, I go to another state Q3, और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा that I have seen a keyword that is int। इस तरह क्लास सपोज फॉर है, फॉर के लिए दूसरा
डीएफए बना होगा, या फिर इसी डीएफए से बना सकते हो। एफ दिखा तो मैं यहाँ आऊंगा में, ओ दिखा तो मैं इस स्टेट में जाऊंगा, आर दिखा तो मैं जाके एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी तरह एल्स के लिए बना होगा, ई दिखा तो यहाँ। दिस इज हाउ द होल ट्रांजिशन डायग्राम फॉर द कीवर्ड्स विल बी मेड। तो उससे क्या होगा, सपोज इन द प्रोग्राम आई हैव रिटन समथिंग लाइक दिस, इंट ए इक्वल्स टू 10। तो जैसे ही आई दिखा, बहुत सारे ट्रांजिशन डायग्राम्स हैं लेक्सिकल एनालाइजर के पास, कीवर्ड्स का बना है, ऑपरेटर्स का बना है, आइडेंटिफायर्स का बना है, सबका बना है। लेकिन उसका पहला कैसे मैच हो जाएगा, आई तुरंत ये इससे मैच कर लेगा, दैट आई हैव आई एम गेटिंग अ पैटर्न मैचिंग विद दिस इंट वाले के साथ। आई दिखा, एन दिखा और टी दिखा और पैटर्न मैचिंग। अब सपोज ये ऐसा लिखा होता, आई एन सी ए इक्वल्स टू 10, अगर मैं ऐसे कर देता तो क्या होता, क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आती, या फिर आई एन सी विल बी वन टोकन? क्या यहाँ पे कोई एरर आती है, आई एन सी वुड हैव बीन अ वन टोकन? Getting or not, everyone? There will be error, right? Because जब उसे I दिखेगा, उसे N दिखेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसे T दिखना चाहिए, बट उसे दिखेगा यहाँ पे C। ओके, सो दे विल बी अ एरर। बाकी एरर्स के बारे में और बाद में बात करेंगे, द फोर्थ मॉड्यूल, लेक्सिकल एरर्स क्या होती है, सिंटैक्स एरर्स क्या होती है, ऑल दोस थिंग्स वी विल टॉक आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज हाउ लेक्सिकल एनालाइजर विल डू द पैटर्न मैचिंग। ओके, लेक्सिकल एनालाइजर में इतना ही था। एक लास्ट थिंग है, दैट इज लेक्स टूल। अभी लेक्सिकल एनालाइजर आज के टाइम में कैसे करते हैं, सपोज इफ यू वांट टू मेक अ कंपाइलर, तुम्हें खुद से कंपाइलर बनाना है। अब उसमें तुम खुद से पूरा का पूरा कोड नहीं लिखने जाओगे कि मैं डी, क्योंकि अगर तुम्हें खुद का कंपाइलर बनाना है तो तुम्हें सारे डीएफएस बनाने होंगे अपने प्रोग्राम में। यू हैव टू क्रिएट ऑल दिस डीएफएस कि कीवर्ड्स ऐसे दिखेंगे, ऑपरेटर्स ऐसे दिखेंगे, पंचुएटर्स ऐसे दिखेंगे, आइडेंटिफायर्स ऐसे दिखेंगे। पहले डीएफएस बनाओ, फिर प्रोग्राम लिखो पैटर्न मैचिंग की, राइट? तो ये सारा काम जो है वो आज के टाइम में, इफ यू वांट टू मेक अ कंपाइलर, देयर इज अ ऑलरेडी प्री डिफाइंड टूल दैट इज नोन एज लेक्स टूल। ये पहले से बना हुआ है, इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू मेक योर ओन कंपाइलर। इसी तरह सिंटैक्स एनालाइजर पढ़ेंगे, पार्सर्स, उसका खुद का टूल है YAC टूल। यू कैन यूज दैट टूल डायरेक्टली। ओके, सो दीज आर सम प्री डिफाइंड टूल्स जिसकी मदद से यू कैन डू द लेक्सिकल एनालिसिस। ओके, तो लेक्स टूल क्या है, कैसे काम करता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट्स यू हैव? कोई डाउट है?